بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں، شکریہ۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے نمبر 2 اور کیسر سے کہا کہ قافلے کے افراد کی گنتی کرو تاکہ معلوم ہو سکے کون موجود نہیں ہے۔ ابھی گنتی شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ ویسی ہی چیخ دوبارہ سنائی دی۔ یہ جنگل میں ہمارے قریب ہی سے آتی تھی۔ ٹارچوں کی روشنی میں ہم سب اس طرف بھاگے۔ ہم سے زیادہ 50 فٹ کے فاصلے پر شمس دکھائی دیا۔ ایک بڑے اژدہا کا کچھ حصہ اس کے جسم کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ شمس کے صرف دونوں بازو آزاد تھے جس سے وہ اژدہا کے گرفت سے نکلنے کی بیکار صحیح کر رہا تھا۔ اب حکم دینے یا لینے کا وقت نہیں تھا۔ مجھ سمیت میرے نمبر 2 کیسر اور اس کے 2-3 ساتھیوں نے اژدہا کے سر اور اس حصے پر جس نے شمس کو گرفت میں نہیں لیا تھا بیک وقت گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ شمس کی آنکھیں مسلسل کھلی ہوئی تھیں اور اب اس کے بازوؤں کی حرکت بھی ختم ہو چکی تھی۔ اتنی گولیاں لگنے کے بعد بھی جب اژدہا نے کوئی حرکت نہ کی تو مرنگوں نے ہمیں فائر کرنے سے روکا اور اپنے بالے تانے ہوئے اژدہا کے قریب گئے اور شمس کے جسم کو کھینچ کر اژدہا کی گرفت سے نکالا۔ اژدہا ہماری گولیاں لگنے اور ہلاک ہونے سے پہلے ہی شمس کے جسم کو اس بری طرح سے بھین چکا تھا کہ اس کی پسلیاں اور جسم کی دوسری ہڈیاں ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکی تھیں اور اس کے مردہ جسم کے بازو اژدہا کی حرکت کے باعث ہل رہے تھے۔ ہم نے حمید کی اجازت سے شمس کو غسل دیا اور وہیں پر اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اور بڑی مشکل سے ایک گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیا۔ مجھے رہ کر افسوس ہو رہا تھا کہ اگر اتنی جلدی شمس نے ہم سے جدا ہو جانا تھا تو میں نے اسے کیوں مارا اور ذلیل و خوار کیا۔ شمس کی اس طرح سے موت ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ حمید نے ہمیں بتایا کہ شمس حوائج ضروریہ سے فراغت کے لیے جنگل میں گیا تھا اور درخت کے تنے جتنا موٹا اژدہا یقیناً اس جگہ پر ہی تھا جہاں شمس گیا تھا۔ میں نے شمس کا ذاتی سامان اور گائیڈ بننے کا معاوضہ $500 حمید کو دیے۔ تھکے ہارے جب ہم اپنے سلیپنگ بیگ میں دوبارہ گئے تو پرندوں کے چہچہانے سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ صبح ہو رہی ہے۔ اب خاک نیند آنی تھی۔ بادل بھی بہت گہرے ہو چکے تھے۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی کے بعد یوں موسلا دھار بارش ہوئی کہ اللہ کی پناہ، یہ پورا دن اور رات ہم نے پڑاؤ پر ہی گزارا۔ شدید بارش کی وجہ سے ایک تو جنگل میں چلنا بہت دشوار تھا، دوسری وجہ چشمے کی گزرگاہ تھی جس میں برساتی پانی اس قدر چڑھ آیا تھا کہ شور مچاتا اور پتھروں کو اکھاڑتا۔ یہ پانی اب کناروں سے باہر بہہ رہا تھا۔ قائرین نے اگر پہاڑوں میں برساتی پانی یک لخت چڑھ آنے اور اس کی شدت دیکھی ہوگی تو انہیں بخوبی اندازہ ہوگا کہ ہمارے چشمے کی گزرگاہ کی کیا حالت ہوگی۔ بارش کے ساتھ ساتھ انتہائی کڑک دار بجلی چمکتی اور وقفے وقفے سے جنگل کے درختوں پر گرتی۔ اس بارش اور آسمانی بجلی گرنے کے دوران زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے ایک قدرتی عمل دیکھنے کا بچشمِ خود موقع ملا۔ جنگل میں قسم قسم کے درخت اگے ہوئے تھے۔ ایک بار بجلی ہمارے قریب ہی ایک درخت پر گری۔ درخت کے کئی ٹہنے ٹوٹ کر گر گئے اور ان میں آگ بھڑک اٹھی جسے بارش نے جلد ہی بجھا دیا۔ چند ہی لمحوں میں ہوا میں ایک انتہائی خوشگوار خوشبو پھیل گئی۔ مرنگ خوشبو پھیلتے ہی اس درخت کی جانب بھاگے۔ میں یہ سمجھا کہ وہ ہمیں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ ہم سب خیموں میں بیٹھے تھے جنہیں ہم ایسی ہی ناگہانی صورت میں بارش سے بچاؤ کے لیے ہمراہ لائے تھے۔ میں نے کیسر اور اس کے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور ہم سب مرنگوں کے پیچھے گئے۔ مرنگ اس درخت کے گرے ہوئے
आध जले टहनों को बड़ी शाखों को काट रहे थे। दूसरी सारी खुशबू इन्हीं टहनों से आ रही थी। थोड़ी देर में ही मोरंगों ने तमाम छोटी बड़ी शाखें काटकर और इनके जले हुए पत्ते इलादा करके इनके 2 बड़े गड्ढे बांधे। वहीं से दूसरे दरख्तों की लंबी और बारीक शाखें लेकर इन्हें बांधा और उठाकर मेरे खेमे में ले आए। इन तमाम शाखों पर लातादाद फिंसनियाँ सी निकली हुई थीं। उन्होंने शाखों के 2 बड़े गड्ढे मुझे यानी अपने वक्ती सरदार को पेश किए। मुझे अभी तक इनका मसरफ समझ में न आया था। इन शाखों से अभी तक खुशबू आ रही थी और ये खुशबू मुझे खासी मानूस महसूस हो रही थी। अचानक ही मुझे याद आया कि खुनसा का ड्राइंग रूम भी ऐसी ही खुशबू से महका हुआ था और फिर दिमाग के आगे से पर्दे हटते गए। उमर ने मुझे एक रोज़ बताया था कि कंबोडिया, थाईलैंड और लाओस के जंगलात में अक्सर, बर्मा, आसाम और बांग्लादेश के जंगलात में कहीं कहीं ये मखसूस किस्म का खुदरो दरख्त पाया जाता है। अगर कभी आसमानी बिजली इस दरख्त पर गिर पड़े तो बड़े टहने टूटकर गिर जाते हैं और आग पकड़ लेते हैं। अगर बिजली गिरते वक्त बारिश भी हो रही हो तो बारिश आग को बुझा देती है, लेकिन बिजली की हिद्दत से शाखों की अंदरूनी रस इनकी जिल्द पर आकर फिंसलियों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये शाखें दुनिया में सबसे कीमती लकड़ी समझी जाती है और इसे ऊद कहते हैं। मिडिल ईस्ट के हुक्मरान और उमरा इस खुशबू के दीवाने हैं। सूखने पर ये शाखें 1976 में $10,000 में 1 किलो के हिसाब से ये हुक्मरान उमरा बाखुशी खरीदते थे। जब सुलगाया जाता है तो इसकी मशहूर कुन खुशबू इनके महलों में फैल जाती है। जो शाखें मोरंगों ने मुझे दी थी, सूखने के बाद भी इनका वजन 40 किलो से ज़्यादा ही होना था। दूसरी रात को बादल छट गए। सुबह की निखरी निखरी धूप में यूं महसूस होता था गोया जंगल ने गुस्ल किया है। हमारा काफिला सुबह 9 बजे ही मग कबीले की जानिब रवाना हो गया। चश्मे का पानी अब अच्छी खासी बड़ी नदी की सूरत इख्तियार कर चुका था और पहाड़ की ढलवान की जानिब लहराता बल खाता कभी नजरों से बिल्कुल गायब होकर यकलख्त सामने आ जाता। यूं ही एक बार जब गायब हुआ चश्मा सामने नजर आया तो मोरंगों ने इशारे से हमें बिल्कुल खामोश रहने और बैठ जाने को कहा। हमारे सामने ही 10-12 हाथी एक कतार में अगले हाथी की दुम को अपनी सूंड से पकड़े चश्मे को क्रॉस कर रहे थे। 2 नर हाथी कतार से इलादा चलते हुए 2 बच्चे हाथियों की निगरानी कर रहे थे, जो शरारतें करते और अपनी सूंड में पानी भरकर एक दूसरे पर उछालते कतार से दूर हो जाते। मुझे बाद में सुंदरबन में खेदा जंगली हाथियों के गोल को पकड़ने का दिलचस्प तरीका, जिसका जिक्र आगे आएगा, के दौरान बताया कि जंगली हाथी अगर किसी इंसान को अचानक देख लें तो इस पर हमला कर देते हैं। हाथियों के गुजरने के काफी देर बाद तक हम अपनी जगह पर दुबके रहे। अब हमारा काफिला मग कबीले की हदूद में दाखिल हो चुका था, क्योंकि नकारे एक खास अंदाज में बजकर हमारी आमद की इत्तला दी जा रही थी। मग्गों के एक करीबी गांव के लोग चश्मे के दूसरे किनारे पर आकर हमें देखने लगे। मोरंगों ने इन्हें अपनी जुबान में कुछ बताया। अब मग चश्मे की दूसरी तरफ हमारी मुतवाजी चल रहे थे। कुछ आगे जाकर एक जगह वो रुक गए। वहां पर चश्मे का पाट खासा चौड़ा और पानी निस्बतन कम गहरा था। वहीं से हमने चश्मे को अबूर किया और अब मग और मोरंग हमारे आगे आगे हमें इस गांव में ले जा रहे थे जहां इनके सरदार की रिहाइश थी। शाम के 6 बजे होंगे जब हम सरदार के गांव में दाखिल हुए। एक कबीले के मर्द और औरतें सतरपोशी के लिए जानवरों की खालों के टुकड़े
बांधे हुए थे। इनके झोंपड़े भी खालों से ढांपे हुए थे। सरदार का खैमा गांव के बीच में सबसे बड़ा और नुमाया था। इसके खेमे के सामने खुली जगह पर हमें पड़ाव करने का कहा गया। खच्चरों पर से सामान उतारा गया तो मैंने सरदार और इसकी रानियों के लिए खरीदे नकली मोतियों के हार, सिगार और सिगरेट वगैरह निकालकर अलहदा कर दिए। टिन फूड भी हमारे पास खासी मिकदार में था, क्योंकि मुरंगों को तो ये ताइफ देने की नौबत ही ना आई थी। इस कबीले की औरतें भी मुरंग औरतों से इखलाकी तौर पर बहुत बेहतर थी। उन्होंने जिस्मों का ऊपरी हिस्सा पत्तों की बेलों से ढांपा हुआ था। सिर्फ बच्चों को दूध पिलाते वक्त वो कोई झिझक वगैरह महसूस नहीं करती थी। सूरज गुरूब होते ही गांव के बासी मशलें रोशन किए सरदार के खेमे और हमारे पड़ाव की जगह के दरमियान कतारों में बैठ गए। मुरंग गाइडों के जरिए सरदार को हमारे मुताल्लिक मुफस्सल इत्तलाहत यकीनन मिल चुकी होंगी, इसलिए हमारे लिए 30 जिंदा मुर्ग लाए गए। कैसर के साथियों ने इन्हें ज़बह करके आग पर भूना और खाने के बाद उन्होंने हम सब के लिए चाय बनाई। अभी हम खाने पीने से बामुश्किल फारग हुए थे कि मग सरदार अपने खेमे से बरामद हुआ। इसके दाएं बाएं इसकी 2 रानियां और पीछे बाले बरदार मुहाफिज थे। सरदार ने अपने तख्त पर बैठकर अपने करीब खड़े एक अधेड़ उम्र मग, जो अपने पहनावे से इसका मुशीर लग रहा था, कुछ कहा। मुशीर सीधा मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे सरदार के पास ले जाना चाहा। दूध का जला जहाज को भी फूंक फूंक पककर पीता है। मैंने आसदगी से कैसर को, जो मेरे करीब ही खड़ा था, कहा कि अपने साथियों को कहे कि अपने हथियारों पर हाथ की गिरफ्त मजबूत कर ले और खुद वो और मेरा नंबर 2 साथ लिए गए ताइफ उठाकर मेरे पीछे आए। हम सरदार के पास पहुंचे तो सरदार ने खड़े होकर अपना बाजू मेरे दाएं कंधे के जोड़ पर रखा। मैंने भी बिल्कुल इस तरह किया। ये गालिबन इस कबीले का गर्म जोशी से हाथ मिलाने का तरीका था। मैंने सरदार को ताइफ पेश किए, जिन्हें इसने खुश दिली से कबूल किया। मैं सोच ही रहा था कि सरदार ने गुफ्तगू करने के लिए एक या कई मुतरजमों की ज़रूरत पड़ेगी कि सरदार ने टूटी फूटी अंग्रेज़ी में मुझे मुखातब करते हुए कहा, खुश आमदीद और ताइफ के लिए बेहद शुक्रिया। मैं अपने वालिद सरदार की ज़िंदगी में कुछ अरसे तक चिटागंग के एक स्कूल में पढ़ता रहा हूँ और अंग्रेज़ी ज़ुबान से बिल्कुल ही नाबलद नहीं हूँ, बल्कि आसान अल्फाज में समझ सकता और अपना माफी ज़मीर भी बयान कर सकता हूँ। इसने मुझे अपने साथ बैठने की दावत दी। इसके लंबे तख्त पर इसकी 2 रानियां ज़रा खिसक गई और मैं सरदार के साथ बैठ गया। कैसर और मेरा नंबर 2 थाई, जो अभी तक हमारे सामने खड़े थे। मुशीर ने 2 मूड़े पेश किए, जिन पर वो मुशीर के साथ ही बैठ गए। सरदार ने चंद रस्मी बातों के बाद मोरंग कबीले की बात छेड़ते हुए कहा, इस जलाद और वैशी औरत से कबीले वालों की जान छुड़वा कर तुमने न सिर्फ इस कबीले पर बल्कि हम पर भी एहसान किया है। मुरंग हमारे कबीले से बहुत छोटा लेकिन हमारा दोस्त कबीला है। इस औरत ने अपने सरदार शोहर को कत्ल करके हमारे साथ भी अपने कबीले के ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। तुम्हारे हमरा आने वाले मुरंगों ने बताया कि उन्होंने अपने सरदार चुनने के लिए मेरा नाम तजवीज़ किया है। अगर तुम सारी मालाएं, तकुना, याकूत और ताज मुझे दे दो तो मैं किसी मुनासिब मुरंग को इनका सरदार चुन लूँगा। सरदार ने मुझे से मिलने के चंद मिनट बाद ही मुझसे मुरंग कबीले के सरदार की पहचान की निशानियां मांग ली थीं। इसके इस कदर उजलत ने मुझे शक में डाल दिया। अपने महकमे में ट्रेनिंग के दौरान मुझे सिखाया गया था कि मफरूज़ों में ही हक़ाइक़ छुपे होते हैं, इसलिए इन्हें यकसा नज़र अंदाज ना करो। मैंने सरदार को कहा, सरदार औरत को हलाक करने के बायस मुझ पर भी मुरंग कबीले की कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं।
क्या ये बेहतर ना होगा कि इस रस्म को हम कल के लिए मुलतवी कर दें? वैसे भी आज रात हम आपकी मेहमान नवाजी से लुत्फ अंदोज होंगे। शायद मेरी बात सरदार की तवक्को के खिलाफ थी। एक लम्हे को इसके चेहरे का रंग बदला और माथे पर तेवरियां पड़ी, लेकिन फौरन ही इसने अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए कहा, बेशक आप हमारे मेहमान हैं और हमारी खातर तवाज़ो और तफरीह तबा के लिए हम कोई कसर न उठा रखेंगे। मुरंग सरदार का चुनाव तो बाद में होता रहेगा। मैं तो चाहता हूँ आप चंद रोज यहीं रहें और अपने सफर की थकावट उतारें। सरदार ने ये कहकर अपने मशीर को अपने करीब बुलाया और इसे कुछ हदायत दी। मशीर कबीले की 10-12 औरतें और इतनी ही तादाद में मर्द अपने अमरा लेकर खेमों की तरफ चला गया। इधर सरदार से चंद मिनटों के लिए इजाज़त लेकर मैंने कैसर और नंबर 2 को इशारा किया और वो मेरे साथ ही खच्चरों की तरफ आ गए। मैंने इन दोनों को कहा, मुझे सरदार की नीयत ठीक दिखाई नहीं देती। मुमकिन है ये मेरा वहम ही हो, लेकिन एहतियातन अपने तमाम साथियों को कह दें कि अपना तमाम असला और गोलियां अपने पास तैयार हालत में रखें और इनकी दी हुई खाने पीने की कोई शय भी हरगिज इस्तेमाल ना करें। नंबर 2 को मैंने खसूसी हदायत दी कि अगर कबीले वाले तुम्हें और तुम्हारे साथियों को शराब पेश करें तो अव्वल तो शराब ना पियो और अगर बहुत जी चाहे तो जाम पहले पेश करने वाले को पिलाओ, फिर खुद बाद में पियो। नंबर 2 ने मेरी बात सुनकर कहा, जनाब हम पहले ही बहुत शर्मिंदा हैं और अगर आप ना भी कहते तो हम इनकी दी हुई कोई चीज़ भी इस्तेमाल ना करते। आप बेफिक्र रहें, हम हर मुमकिन एहतियात करेंगे और हर कदम चौकन्ना रखेंगे। मैं इन दोनों को हदायत देकर सरदार के पास वापस लौट आया और चंद मिनटों में कैसर और नंबर 2 भी अपने साथियों तक मेरा पैगाम पहुंचाकर अपने मूडों पर आन बैठे। मेरी गैर मौजूदगी में सरदार की 2 रानियां भी अपने खेमों में जा चुकी थीं। थोड़ी देर में ही बहुत सारी लकड़ियां मैदान में हमारे सामने ढेर करके अलाव रोशन किया गया और 3 नकारे अलाव की दूसरी तरफ बजने लगे। 3 मग मर्द एक बड़ा मटका उठा लाओ और सरदार से कदरे फासले पर रख दिया। मटका किसी सियाल शय से भरा हुआ था। चंद लम्हों में ही 15 मग औरतें अपने चेहरे और बाजुओं पर मुख्तलिफ रंगों से सजावट करके आईं। हर एक के हाथ में एक खाली जाम था। वो सब सरदार के सामने उकड़ों बैठ गई। इनके पीछे ही 15 मग मर्द भी आ गए। इनके जिस्मों और चेहरे पर भी मुख्तलिफ रंगों से लकीरें खिंची हुई थीं। ये दोनों टोलियां सरदार के सामने अभी बैठी ही थीं कि दोनों रानियां भी रंगों से चेहरे सजाए और जाम थामे खेमे से बाहर आईं और तख्त पर हमारे साथ बैठ गईं। सरदार ने खड़े होकर अपनी जुबान में कुछ कहा। दोनों रानियों ने मटके से एक एक जाम भरकर जमीन पर फेंका। ये एक तरह से इजाजतनामा था कि शुरू हो जाओ। मग औरतों ने मटके से जाम भरकर मेरे साथियों को पेश किए। इनके इनकार करने पर खुद जाम में से थोड़ा सा पिया और फिर जाम मेरे साथियों को पेश किया। अब भी उन्होंने इनकार किया तो उन्होंने यही जाम अपने मर्दों की टोली को दिए जो घटाघट पी गए। मैं भी अपने साथियों के रवैये के बारे में सरदार को कहा कि मुरंग कबीले में पेश आने वाले हालात के बायस मेरे साथियों ने अहद किया है कि शराब हरगिज नहीं पिएंगे और मैं भी इस अहद में शामिल हूँ।